Hi all. So our today's topic is related to how to handle calendar or date picker. Okay. So what is calendar or date picker? For that, uh, we'll be using one site, and which is uh, here we'll be using that site. Not remembering the name. I'll copy this from here. Mm, Okay, this is the site. So first understand what is we are dealing with. So this will be the site, and here it is asking you to enter the date. Okay. So there are two kinds of element, guys. One element is standard element. So standard element means normal, like primitive elements, the elements that we already know. Okay, like checkbox, input box, button, radio buttons. Okay, so like individual elements, primitive elements. And second part is customized element. So customized elements are nothing but the element which is designed with the help of multiple स्टैंडर्ड एलिमेंट्स. सो ऐसे छोटे छोटे स्टैंडर्ड एलिमेंट्स लेके एक बड़ा एलिमेंट हम जब बनाते हैं, ओके, और उसको एज अ ग्रुप मतलब कलेक्टिवली उसको यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कस्टमाइज एलिमेंट. तो कस्टमाइज एलिमेंट मतलब एक्चुअली देखा जाए तो उसके अंदर छोटे छोटे स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ही है, बट एज इट इज स्टेटेड लाइक दिस कैलेंडर इज मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमाइज एलिमेंट्स, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग चीजें होगी, इनपुट बॉक्सेस भी होंगे, बटन्स भी होगी, लिंक्स भी होगी. ओके, सो it is a customized elements. So whenever there are customized elements, we just need to take some care. We need to use some logic, some sense to handle that. Okay. So whenever you need to handle calendars, or it is also known as date pickers. So initially you can handle that using our simple input box technique, that is using send key method. So like here, initially it is asking you to enter date. Okay. So most of the times, 90 to 95% times, it will allow you to directly send keys, means enter the date here manually using send keys, and it will accept that date. So suppose you want to give some date. For example, you need to give May 8. So you can give this date manually. Okay, I'm just doing refresh, and here what I will do, I will just put that date manually, and can you see that date is directly getting selected. Okay, so means it has allowed you to do that, and you can proceed now. So this is the simplest technique without using any calendar, date picker or calendar, without touching to that customized element. We are doing with using our primary element or our standard elements, which is that input box. Okay, so this will be accepted most of the times. Only for some rare development cases where some other technique is used for development. So it is not allowing you to give send keys. ये सेंड कीज यहाँ पे करने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे, ये बटन ना डिसेबल ही होगा या कुछ तो होगा, अलाउ ही नहीं होगा इसमें एंटर करना. तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आप इस सिंपल वे से नहीं जा सकोगे, फिर आपको यहाँ पे आके मतलब आपके पास ऐसे जब आएगा और आप पहले ट्राई करोगे सेंड कीज करना मगर अलाउ नहीं कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इस डेट पिकर को या फिर कैलेंडर को ओपन करना पड़ेगा. यू नीड टू ओपन दैट, दिस इज अ डेट पिकर और कैलेंडर गाइस, एंड देन according to its feature you need to manually go and select the date. So right now assume that this is a make my trip, like aeroplane booking site, SpiceJet or something. Okay. So obviously it will allow you to select future dates. तो आपको अभी 2 महीने बाद ट्रैवल करना है. So suppose on 1 महीने बाद मुझे करना है on first 8th of May. So
what I need to do, I need to click here 2 times. So I will reach to the May 2040, and then I need to select this date manually. Then it will be selected. So that process I need to follow manually. तो ये इस पे दो बार ऐसे क्लिक करने, आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके वो सिलेक्ट करना, ये चीजें करना, मतलब क्या, तो कैलेंडर को या डेट पिकर को हैंडल करना। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर ये हो गई कोई साइट जिसकी, जैसे मैंने बोला स्पाइस जेट की, तो आपको फीचर अलाउ करेगी। कुछ साइट ऐसी होगी जो आपको पूछेगी आपने कुछ पॉलिसी, आपका एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट कब हुआ था, ये अगर पूछने वाले हो, तो वो साइट्स पे बैक डेट्स ओनली अलाउड करेंगी, फ्यूचर की अलाउड नहीं करेंगी। तो उस पे डिपेंड होगा कि आप किस पे क्लिक करोगे, आगे पे क्लिक करोगे या इस पे। कुछ यहाँ पे आपको ईयर वाइज भी निकालने का मौका देगी, कुछ आपको ऐसे बस इतना ही क्लिक क्लिक करते रहो ऐसे बोलेगी। डिपेंड्स कि कितना पीछे किसको जाना है। अगर आपकी बर्थ डेट डालने के लिए बोलना है तो आपको यहाँ से बर्थ डेट के लिए पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, फिर ऐसे नहीं होगा। मगर जस्ट बुकिंग हमें करना है तो पता है उनको कि बुकिंग तो हम कुछ महीने आगे के ही करते हैं, तो इसलिए वो ईयर वाइज नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डेट्स होगी, तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग हैंडल करना है। मगर टेक्निक वही होगी कि यहाँ पे आके आपको ये ऐसे है, वहां पे जाके इसको एक एक को क्लिक करके उतनी बार आगे जाना है और वो डेट सिलेक्ट करनी है। तो वह कैसी करनी है इसका हमें बस लॉजिक लगाना है। So that is handling this calendar or date picker. Okay, so we'll go one by one. First, we will go with our first approach. So what is first approach? Using send keys. That is the simplest approach for which this date picker handling is not at all needed. Okay, so what I have created, guys, here, I have created inside our um, here it is. Yeah, I think it is in Selenium project. Yeah, inside. Ah, okay, inside here, I have created one interview question folder. Inside I have created one calendar demo class. So this is that calendar demo class. And I have just provided the basic site name, maximize that I did sleep. Okay, only that basic things to avoid the time I have created. Okay, so the next logic will be proceeding with. So what I will be doing, I will just go here. I will just refresh so that the first page as it is, it will appear. So I just need to inspect this and need to find the XPath for this input box. Okay, and after finding XPath for the input box, what I will do, I will use send keys method and pass the date. Okay, so in for this input box, you can see input tag here, attribute ID and value date picker. So I will use here input @ ID is equal to date picker. Okay, it is identified one of one, means uniquely it is getting selected. Okay, so I will be using this here. Okay, and then I'll be using send keys. I'll be using send keys. So for send keys, we need to send the date in that format which it is allowing. So which date we want suppose this 8 May. So I will be selecting this as it is format and paste it here. So we need to send this. So same format should be followed. And then semicolon I will give. Okay, so now I'm expecting that my expert is right, send keys is right, everything is right. I have confirmed. So now it should
provide that send keys there. Okay, I will run this. We'll check. Hmm, it is open. I added some wait. Maybe it might be waiting. No, guys, something error. Some error occur, guys. Hmm, here. Yeah. So what is the error? On line number 13, the error is there, and the error is in XPath. Okay. So what is the error? We'll see. We'll go here. So error is ये XPath जो है उसको मिल नहीं रहा है. Unable to find element error है. ओके. तो जो XPath जो हमने दिया है, तो वो मिल नहीं रहा है. तो यहाँ पे देखो एरर आप देख सकते हो. नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट एलिमेंट. मतलब हमारा XPath गलत है ऐसे बोल रहा है. मगर हमें तो पता है हमारा XPath तो सही है, हमने कंफर्म करके ही किया है. तो ऐसे जब एरर आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका मतलब क्या है कि हमारे इस साइड पे कुछ तो फ्रेम की झंझट है. ये इस फ्रेम पे नहीं है. तो हमने ये पहले ही देखना चाहिए था हमें एक्चुअली. मगर हम जो जोश में हम करके. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई फ्रेम है. ठीक है. इस फ्रेम की झंझट है. तो इसीलिए ये इशू दिया. तो ये किस पे है? ये जो सारा एक्सपाथ है मेरा, ये जो एलिमेंट है वो इस फ्रेम पे है. तो मुझे हमें पता है ये कि जब भी फ्रेम में होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस वक्त स्विच करना पड़ता है उस फ्रेम पे. ठीक है. तो पहले तो हम देखेंगे इस फ्रेम का डेमो फ्रेम नाम का क्लास है उसका. पहले तो इस फ्रेम का लोकेटर हम ये करेंगे, आई फ्रेम और क्लास डेमो फ्रेम. तो एक तो क्लास है, मगर हमें जो हमें पता है कि हमने फ्रेम देगा तो स्विच टू फ्रेम हमें करना पड़ेगा और इस फ्रेम पे आना पड़ेगा. तो अभी इस फ्रेम का कुछ नाम नहीं दिख रहा है हमें. और मैं पहले तो आई फ्रेम टैग यहाँ पे लिख देता हूँ. देखते हो कि कितनी फ्रेम्स है. ठीक है. तो मुझे पता चला कि आई फ्रेम करने के बाद एक ही फ्रेम है पूरे. यहाँ पे देखो पूरे पेज पे एक वन ऑफ वन. सो आई फ्रेम ओनली वन है. तो इसीलिए यूजिंग इंडेक्स मतलब यूजिंग द फ्रेम नंबर ऑल्सो वी कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि एक ही बची है बस. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, उसकी इंडेक्स मतलब जीरो इंडेक्स यूज करेंगे, मतलब 0 नंबर की फ्रेम ले लो. ऐसे हम इसको अगर याद नहीं आ रहा है तो हैंडलिंग फ्रेम का लेक्चर देखो गाइस, हाउ टू हैंडल फ्रेम्स. उसमें ये टेक्निक्स बताई थी मैंने. ठीक है. तो अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा मैं कैसे सोच रहा हूँ. हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे. फ्रेम में मुझे फ्रेम को स्विच करना है पहले, तब मुझे एलिमेंट मिलेगा. ठीक है. और एक ही फ्रेम है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं जाऊंगा वहां पे. यहाँ पे चला जाऊंगा. हम्म, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा. और ये होने से बाद मैं पहले क्या करूंगा, फ्रेम स्विच करूंगा. तो फ्रेम स्विच करने के लिए क्या लॉजिक है, ड्राइवर डॉट स्विच टू, उसके बाद स्विच टू क्या, फ्रेम. और हम इंडेक्स देंगे इसकी. तो इंडेक्स वाली मेथड में क्योंकि नेम हमें नहीं मिल रहा है उसका, फ्रेम का नेम नहीं स्पेसिफाई किए होने, तो इंडेक्स देंगे और 0 नंबर की फ्रेम बताएंगे. तो जस्ट शिफ्ट टू 0th फ्रेम. ओके. एंड देन यूज दिस सेंड कीज, ऐसे हम बताएंगे. तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी वो करेगा मेरा काम. ठीक है.
तो देखते हैं कि करता है कि नहीं करता है। ऊपर हो जाओ ये। तो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। ओके, किया उसने। देखो, प्रॉपर उसने 8 नंबर की डेट सिलेक्ट कर दी, जो चाहिए था, हमारा काम हो गया। ठीक है, मतलब दिस इज वर्किंग। सो इफ दिस इज वर्किंग, देन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मगर अब ऐसे हम एज्यूम करके चलेंगे कि इट इज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ड्राइवर डॉट क्विट देंगे, ताकि हमारे ब्राउजर विंडो ओपन ना रहे। ठीक है। ठीक, ये एक अप्रोच हो गया गाइस, कि कैसे करो इसको हैंडल करो, सेंड की से हैंडल करो। ठीक है, एक अप्रोच तो हमने देखा, मगर ये हर बार वर्क नहीं होगा। तो इसीलिए अभी हमारा जो मेन पार्ट है वो हम देखेंगे कि अगर ये नहीं ऐसा हो रहा है तो फिर कैसे करो। तो इसको इसलिए मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ और इसको, इस लाइन को हम कमेंट करेंगे। तो अभी हम सेंड किस से नहीं करेंगे। हम्म? तो हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और दूसरा अप्रोच यूज करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल हैंडल दिस कैलेंडर और डेट पिकर, उसको अब अभी हम हैंडल करेंगे। ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली जाके वो चीज हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमारे इनपुट पहले तो हमें फाइनल करना पड़ेगा कि हमें क्या सिलेक्ट करना है। तो ये जो डेटा है वो शायद हमारे एक्सेल से आएगा या प्रॉपर्टीज फाइल से आएगा, पता नहीं कहाँ से आएगा। अभी तो हम डायरेक्टली स्ट्रिंग से ये डेटा यहाँ पे ले रहे हैं। तो हमें क्या क्या करना है कि सपोज, पहले तो मुझे पता करना इनपुट कि मुझे कौन सा ईयर सिलेक्ट करना है। तो ईयर तो मेरा होगा 2024। ओके। तो यहाँ पे देखो, ईयर 2024। ठीक है। फिर मेरा मंथ कौन सा होगा, मंथ मेरा है, फॉर एग्जाम्पल हमने वो देखा था मई करना है, ठीक है, मई। और डेट कौन सी करनी है, डेट करनी है हमें 8 फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही हम, बस ये डेटा इनपुट डेटा हमारा है ऐसे एज्यूम करो। ये हमें करना है गाइस, इनसाइड दिस, ये सिलेक्ट करना है हमें। तो अभी कैसे आगे बढ़ेंगे, अप्रोच कैसे होगा। तो अभी ये तो इनपुट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है, ये ये तो हमें लगने वाला है, इसका जो एक्सपाथ है वो हमें लगने वाला है। वो अगर सेंड कीज वाला नहीं हो रहा है तो हम सेंड कीज नहीं करेंगे, हम उस पर क्लिक करेंगे। ये हमने देखा था। तो इसे क्लिक करने के लिए एज इट इज हम ये यहाँ पे यूज करेंगे। ये फिर से मैं कमेंट कर देता हूँ। और इस पे क्या करेंगे, सेंड की नहीं करेंगे, अभी इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो क्लिक कर दी, तो एक बार इस पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, डेट पिक, डेट पिकर ऑप्शन विल गेट ओपन। ओके। तो डेट पिकर यहाँ पे मुझे ओपन मिलेगा, इस पे एक बार मैं क्लिक करूँ तो अभी यहाँ पे आता हूँ मैं, कैसे करेंगे अब देखेंगे। यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डेट पिकर आ गया। तो अभी मुझे क्या करना है गाइस, मुझे मेरी डेट सिलेक्ट करनी है। तो वो फीचर की डेट है ऑब्वियसली, क्योंकि दिस इज फॉर बुकिंग साइट। हम्म तो इसके लिए मुझे आगे आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, यहाँ पे मार्च 2024 है अभी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, अभी मार्च, एक बार मैं क्लिक करा तो आगे अप्रैल, दूसरी बार मैं क्लिक करा तो है मई। तो मुझे यहाँ पे मई 2024 चाहिए। ठीक है। तो ये मुझे चाहिए, और अभी है मार्च। तो जब तक मेरा लॉजिक क्या है अभी, जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो मार्च है, तो मुझे ऐसे क्लिक क्लिक करते बैठना है। कब तक क्लिक करते बैठना है, जब तक मेरा यहाँ पे मई 2024 नहीं आता, तब तक मुझे क्लिक करते बैठना। समझे, ये मेरा लॉजिक होगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ये मई और 2024 है, उसको कंपेयर करना पड़ेगा मेरे इनपुट के साथ। और मुझे इस पे क्लिक करते बैठना पड़ेगा जब तक ये लॉजिक मुझे नहीं मिलता तब। तो अभी यहाँ पे कुछ भी बाउंड्री नहीं है गाइस, देर इज नो बाउंड्री, लाइक देर इज नो
साइज और अपर लिमिट कि कब तक करना है, 10 टाइम करना है, 12 टाइम करना है, 100 टाइम करना है, 2 ही टाइम करना है, कुछ भी पता नहीं हमें। तो इसलिए हमारी जो लूप है, तो लूप की मैचिंग कंडीशन ही नहीं है कोई भी। यहाँ पे हमें ऑब्वियसली लूप लगाना पड़ेगा, अगर लूप की कोई भी मैचिंग कंडीशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब कभी ऐसी मैचिंग कंडीशन नहीं होती, तो हम हमेशा ऐसा लूप लगाते हैं जो ऑलवेज ट्रू हो। तो वाइल ट्रू का हम एक लूप लगाएंगे इसके लिए, तो हमेशा चलता ही रहेगा वो। और जब हमारी मैचिंग कंडीशन मिल जाएगी, तब हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे और उसको ब्रेक कर देंगे। ओके। मगर उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या इसका, ये क्लिक करने के बाद ये गेट टेक्स्ट करना पड़ेगा, और इसको हमारे जो हमने टेक्स्ट लिया है यहाँ पे, उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि ये 24 और मे, ये दोनों अगर मैच हो रहे हैं तभी ब्रेक करो। तभी हम क्या करेंगे, तब तक हम डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर अभी मैंने बोला 8 सिलेक्ट करो, तो वो मार्च की 8 सिलेक्ट कर देगा। तो दिस इज रॉन्ग थिंग। आई डोंट वांट मार्च 8, आई वांट मे 8। तो मुझे पहले तो यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, ये अप्रैल। अरे अप्रैल के बाद जून कैसे जा रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है कुछ तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्च अप्रैल में, हाँ, तो मुझे जब तक ये नहीं आ जाता तब तक मैं नीचे की डेट सिलेक्ट करने के लिए आपको बोल नहीं सकता, मतलब वो लॉजिक नहीं लगा सकता। तो ये लॉजिक मैं बाद में करूंगा, पहले मैं मेक श्योर करूंगा कि ये मेरा मंथ और ईयर आ जाए सही। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मुझे अभी टेक्स्ट निकालना है कंपेयर करने के लिए, तो मैं इनको इंस्पेक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे दोनों के भी टेक्स्ट मिल रहे हैं आईडी से, तो मैं इनके एक्सपाथ लूंगा। ठीक है, तो इनसे मुझे क्या मिलेंगे, इनके टेक्स्ट मिलेंगे। हम्म। तो अभी तो मैं फिलहाल नॉर्मल लेता हूँ, फिर उसको लूप में डालेंगे। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और लेता हूँ यहाँ पे। देखो कैसे क्लास है उसका, ये क्लास उसका कॉमन रहेगा। और स्पैन है, तो यहाँ पे आऊंगा मैं और उसका एक्सपाथ लिखूंगा, स्पैन इनसाइड दिस @class इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा, जो मैंने कॉपी किया है ये वाला, तो ये मुझे पहुंच जाएगा मंथ में। और उसी का सिमिलर अगर आप डैश ईयर करते हो, तो आपको पहुंच जाएगा ईयर में, वन वन ऑन वन कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ, इसका एक्सपाथ निकालूंगा, और फिर इसका मैं क्या निकालूंगा, गेट टेक्स्ट निकालूंगा। ठीक है, तो ये मैं चीज करूंगा। तो यहाँ पे देखो अभी ये मैं करने जा रहा हूँ, हमारे कोड में आ रहा हूँ मैं, ये क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद मैं यही यूज करूंगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का यहाँ तक का पार्ट कॉपी करता हूँ, ताकि मुझे फिर से लिखना ना पड़े। एंटर करता हूँ। और ये कोड हम कहा किसके लिए लिख रहे हैं, रीचिंग प्रॉपर मंथ एंड ईयर, ये लिखने के लिए यहाँ पे ये कोड लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये तो समझो पहले। ठीक है, तो ये करूंगा मैं, और इसका एक्सपाथ तो अभी मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, कंट्रोल है, ये एक्सपाथ मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। आ जाओ भाई, इक्लिप्स में आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक्सपाथ अब यहाँ पे लिखता हूँ। हम्म, और अभी मुझे इसमें क्या चाहिए, इसका मुझे टेक्स्ट चाहिए, मन का टेक्स्ट चाहिए। देखो ना इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है ना, ये मुझे चाहिए। इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट छुपा हुआ है, मे, ये मुझे मे चाहिए। इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट है, 2014, ये मुझे चाहिए। ये मुझे मैच करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डॉट गेट टेक्स्ट करूंगा, डॉट गेट टेक्स्ट। अभी आपको पता चलेगा कि हम कैसे यूज करते हैं इनको। डॉट गेट टेक्स्ट करूंगा, सेमी कॉलन दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और अभी ये ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रिंग कुछ तो रिटर्न करेगा, टेक्स्ट रिटर्न करेगा। तो इसको स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लूंगा, जिसका नाम क्या होगा मेरा, कुछ भी दे दो, मंथ या ईयर, ये होगा आपका मंथ। ओके, या मंथ नेम, मंथ, ऐसे कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, तो ये होगा आपका मंथ, इसमें ये स्टोर हो जाएगा। ओके, मंथ डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल मंथ, मंथ ऊपर कहीं पे किया है क्या हमने। हाँ सॉरी, ऊपर यहाँ पे देखो ये मंथ किया है, कंपेयर करने के लिए हमने ये मंथ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मंथ नहीं देते, बस एमओएन देते हैं। हम्म
तो M1 मतलब जो वेब ड्राइवर से मिल रहा है वो, और मंथ मतलब यहाँ पे हमने जो किया है वो, हमें ये कंपेयर करना है वेदर मंथ इज इक्वल टू M1, मतलब एक्सपेक्टेड, और ये दिस इज एक्सपेक्टेड मंथ, एक्सपेक्टेड, एंड दिस इज एक्चुअल मंथ। तो कुछ भी दो आप, आपको अगर देना है तो आप मंथ एक्चुअल भी दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मंथ एक्चुअल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ये मैं मंथ के लिए करूंगा। सेम लाइन आई विल बी डूइंग, और मैं इसमें क्या करूंगा, मंथ की जगह पे ईयर करूंगा, ईयर एक्चुअल। और बस इसमें एक ही चेंज है ना, यहाँ पे मंथ की जगह पे बस ईयर है, इस बात में एक ही चेंज था, हमने देखा। तो ये मुझे रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार उसको प्रिंट करके देखूंगा कि क्या प्रिंट कर रहे हैं वो अभी। तो इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा मंथ एक्चुअल। हम्म और इसमें ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा ईयर एक्चुअल। ठीक है, तो देखता हूँ कि इनिशियली वो मुझे क्या करते हैं। अभी मैंने किसी पे भी क्लिक नहीं किया, इनिशियल लेवल पे मुझे वो सेंड तो कर रहे हैं ना, जो अभी ये मुझे क्या सेंड करेंगे, साइट लोड होने के बाद जो भी मंथ एंड ईयर होगा दैट विल बी, it will fetch the get text and send to me. Okay, so I'll check, I will execute it once and we'll check. ओके, देखा आपने इनिशियल लेवल पे मार्च और 24 है, तो वो उसने किया। तो ये हमारे साथ मैच तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे क्या है, मई और 24 है, तो 24 तो मैच होगा मगर ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे अभी, उसको एक लूप पे लगाएंगे। हम्म, तो यहाँ पे देखो, इसको हम एक लूप में लगाएंगे, एक वाइल लूप लेंगे, और इसको हमेशा रखेंगे ट्रू, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कंडीशन। ऐसी जब चीज होती है तो हमेशा फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, मगर वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ उसमें एम्प्टी रखने पड़ते हैं आगे के, तो इसलिए बेटर टू टेक वाइल लूप। तो इसमें ये डालेंगे, जब तक नहीं ट्रू हो जाता तब तक क्या करो, इंटरनेट कनेक्शन होपफुली, या ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन इशू आई थिंक दैट वाज प्रॉब्लम, सो होपफुली नाउ आई एम ऑडिबल। आई विल अगेन शेयर द स्क्रीन। हाँ, तो हम इसको वाइल लूप में डालेंगे, और क्या करेंगे वाइल लूप में इसको डाल के, हम क्या करेंगे कि ये करते रहो, मतलब आप क्या, ये गेट टेक्स्ट जो है ये पहले ले लो। ये नीचे का थोड़ा मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए, और ये भी मिनिमाइज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से कोड दिखे। ठीक है, तो वाइल लूप में हमने ये डाला। हम्म, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे देखो, ये लॉजिक है हमारा, यहाँ पे ये जब मैं लोड करूंगा तब ये मिलेगा इनिशियल लेवल का, मई का, मार्च का। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मार्च का मिलेगा, तो मुझे इस पे क्लिक करना है, पहले तो मुझे गेट टेक्स्ट लेना है और कंपेयर करना है इसके साथ, हमारे वैल्यू के साथ। अगर वो मैच हुई, अगर वो मैच हुई तो ही मुझे, अगर वो मैच हुई तो मुझे समझ में आएगा कि डेट, मेरा काम हो गया, तो अभी डेट सिलेक्ट करने के लिए बढ़ो। अगर नहीं मैच हुई तो मुझे इस पे क्लिक करना है। ठीक है, मैच अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, इस पे मुझे क्लिक करते रहना है। ठीक है, तो ये आगे क्लिक करने का लॉजिक मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मगर क्लिक करने से पहले, नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे मैं मेरी कंडीशन दूंगा। क्या कंडीशन है, कि मैं इफ में मेरी कंडीशन दूंगा, इफ, भी देखो मेरी कंडीशन क्या मैच होनी चाहिए यहाँ पे, ये जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है मन की, उसके साथ हमारी एक्चुअल वैल्यू का लॉजिक हमारा कहाँ पे, वेरिएबल क्या है हमारा, ये मंथ एक्चुअल।
ठीक है, तो ये मंथ एक्चुअल जो है, ये मंथ एक्चुअल जो है, इफ मंथ एक्चुअल, और हम स्ट्रिंग में डॉट इक्वल्स मेथड यूज करेंगे। और इसमें हम देंगे कि किसके साथ करना है। तो ये मैच होनी चाहिए मंथ के साथ, ऊपर का एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारा मंथ एक्सपेक्टेड, उसके साथ। ओके, ये एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और इसके साथ एंड, ये दूसरी भी कंडीशन होनी चाहिए कि कौन सी, कि हमारा जो ईयर एक्चुअल है डॉट इक्वल्स, वो होना चाहिए ईयर के साथ। ये टू कंडीशंस अगर हमारी फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें ब्रेक होना है। तो फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना है, वी नीड टू ब्रेक। ओके, बट अगर नहीं हो रही है तो फिर हमें क्या करना है, वी नीड टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट मतलब नेक्स्ट बटन। सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड द एक्सपाथ फॉर दिस नेक्स्ट बटन। इस पे दबाते दबाते रहना है जब तक ये कंडीशंस फॉल्स चल रही है, तब तक ये करते रहना है। तो यहाँ पे देखो, ये बटन तो सिंपल है, नेक्स्ट बटन, स्पैम नेक्स्ट, इतना सिंपल है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सा एक्सपाथ होगा, क्या होगा, स्पैम ऑलरेडी है हमारा, तो क्लास उसका ये है, तो ये क्लास नेम ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसलिए हम बेटर इसका क्लास नेम यूज करते हैं। ये यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया एक्सपाथ। तो जाते हैं हमारे इसमें, और ये क्लिक करने के लिए एक एक्सपाथ लेते हैं एज इट इज, और उसमें बस हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ये एक्सपाथ मैंने कॉपी किया, और ये यहाँ पे जो वैल्यू थी, यहाँ पे देखो कर दिया। तो ये लॉजिक समझा आपको, कि पहले तो हमने गेट टेक्स्ट पेज कर रहा हूँ मैं दोनों के, अगर ये मैच हो रहे हैं तो ब्रेक करो, मैच नहीं हो रहे तो नेक्स्ट पे क्लिक करते रहो, फिर ऊपर लूप आएगा। तो ये इनफाइनाइट लूप रहेगा अगर ये मैच नहीं हुए तो। ठीक है, तो इसे हमें मेक श्योर करना है कि मैच हो जाए। तो अभी आ, ये हो गया है हमारा loop। तो अभी मैं इसको, इनकी जरूरत नहीं है हमें, सिस्टम डॉट प्रिंटलन की। ठीक है, तो ये क्लिक करेगा नेक्स्ट पे, और ये मुझे जो चाहिए वो अभी हमारे, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, May 24 तक वो हमें लाके छोड़ रहा है। ये रिजल्ट होना चाहिए, इसके से हम बाहर पढ़ रहे हैं, तो वी आर ऑन May 24, ताकि हमें 8 सिलेक्ट करने का मौका मिले। तो दिस इज द लॉजिक फॉर रीचिंग प्रॉपर मंथ एंड ईयर। ओके, तो इसको एक बार हम ये करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, उसने क्विट कर दिया ब्राउजर। ब्राउजर को क्विट नहीं करना चाहिए हमें, ताकि हमें देखने को मिले। तो ये ब्राउजर क्विट नहीं करता हूँ मैं, कंट्रोल एस करता हूँ, ताकि आपको देखने को मिले कि वो कर रहा है। ओके, उसने May 24 तक गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, डेट्स निकालनी है। तो डेट्स के लिए अभी ये डेट्स इज टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा इन डेट्स को, यहीं पे आता हूँ मैं, इन डेट्स को अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये टेबल है। तो हमें क्या करना है, इस टेबल की, पहले तो इस टेबल तक पहुंचना है हमें, फिर इस टेबल के इन बॉडी, हमें हेडर में इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस ये बॉडी की डेट्स चाहिए, कितने डेट्स है वो हमें देखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेबल टैब दूंगा, और उसका ये जो क्लास है वो यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे देखो, इसको मैं इससे रिप्लेस करूंगा।
हाँ, अभी हमने टेबल ऑलरेडी देखा है कि कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो इस टेबल तक पहुंच गए। अब मुझे टेबल के क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो मैं टीडी में जाऊंगा। तो टीडी में आप गए तो 1/42 आपको मिल गए। टीडी, टी बॉडी। ओके, तो टी बॉडी आपको 1/42 मिल गए। तो ये 30 ये ऊपर के, और ये एमटी भी उन्होंने लिए है। ठीक है, तो हमें इतने टीडी है, तो ये सारे टीडी तो पहले मैं यहाँ पे लूंगा। ठीक है, और फिर उसमें से जो चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये मुझे 42 देंगे, टीडी रिटर्न करेंगे। तो मैं इसमें फाइंड एलिमेंट्स करके उसको मैं लूंगा, और मैं फिर क्या करूंगा, उसमें से जो हमें चाहिए वो वैल्यू पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो, मैं अभी आ रहा हूँ मेरे कोड में, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्सपाथ है, डायोड फाइंड एलिमेंट्स जो है, ये अभी फाइंड एलिमेंट्स का मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड आ गया, मतलब मैं पहुंच गया। तो यहाँ पे मैं ये करूंगा, मगर यहाँ पे मैं फाइंड एलिमेंट्स यूज करूंगा। और फाइंड एलिमेंट्स में मैं क्या करूंगा, ये एक्सपाथ दे दूंगा इसमें। तो फाइंड एलिमेंट्स में मेरा ये वाला एक्सपाथ जो है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स ये रिटर्न करेगा ऑब्वियसली। तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, लिस्ट लगेगी। ठीक है, तो इसको मैं लिस्ट में स्टोर करूंगा, लिस्ट। और वो लिस्ट किसकी होगी, तो वेब एलिमेंट्स की होगी। वेब एलिमेंट की लिस्ट होगी। ठीक है, और उस लिस्ट का कुछ तो मैं नाम दूंगा। तो इसमें ऑल द डेट्स मेरे आएंगे। तो इसका नाम मैं दूंगा यहाँ पे सपोज ऑल डेट्स, और इसको मैं इसमें स्टोर करूंगा। ठीक है, तो ये होगी, इसमें मुझे सारे डेट्स मुझे मिल जाएंगे। तो ये लिस्ट तक मैं पहुंच गया। अभी मुझे उस लिस्ट से क्या निकालना है, एक मेरा बस एक डेट निकालनी है मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो ये लूप आपको पता है, मैं फॉर ईच लूप का यूज करूंगा। इसको मैं क्या पास करूंगा, मेरी लिस्ट का नाम पास करूंगा यहाँ पे। ये अभी सबको पता है, ऑल डेट्स। ठीक है, ये मैं पास करूंगा, और यहाँ मैं क्या करूंगा, मेरा एक लूप कंट्रोल वेरिएबल लूंगा, आई, और उसका डेटा टाइप दूंगा। ये ऐसे होगा। और उस पे मेरा लूप कंट्रोल वेरिएबल आई होगा, तो उसका डेटा टाइप क्या है, वेब एलिमेंट। ये अभी इसके लिए थोड़ा सा लिस्ट के लेक्चर था, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, फॉर ईच लूप। ओके, और इसमें मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, सिंपल इफ। ये जो आई है मेरा, इसमें अभी सारी डेट्स आएंगी। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं गेट टेक्स्ट करूंगा। ये वेब एलिमेंट के फॉर्मेट में होगा ना, तो इसमें मैं करूंगा गेट टेक्स्ट। हर एक की मैं ये निकालूंगा देश की। और ये अगर हो गई इक्वल्स, ये हो गई इक्वल्स इससे, जो मेरी डेट मैंने लिए ऊपर एक्सपेक्टेड डेट, इससे अगर इक्वल हो गई, तो ही मैं क्या करूंगा, उस पे क्लिक करूंगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, आई डॉट क्लिक, उसी वेब एलिमेंट है ना एक एक, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इससे ये मेरा कोड वर्क होना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये कोड मेरा वर्क होगा। हम्म। कंट्रोल एस, गेट टेस्ट, आई डॉट क्लिक। तो बस मेरा जो एलिमेंट 8 वही सिलेक्ट होगा इससे, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एक बार मैं इसको रन करता हूँ। देखा आपने, 8 को भी उसने सिलेक्ट किया। मतलब जो आपको मंथ चाहिए था वो, और जो आपको डेट चाहिए था वो उसने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हैंडल कैलेंडर को। तो इसमें अगर फ्यूचर डेट है तो आप आगे की करोगे, पीछे की डेट है तो पीछे वाला एलिमेंट को करोगे, नेक्स्ट की जगह पे प्रीवियस पे करोगे। और ऐसे आप हैंडल कर सकोगे किसी भी
क्लास को, ये अलग अलग हो गए तो आपको अलग अलग ऑब्वियसली कॉमन सेंस और आपका लॉजिक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट हैंडलिंग द कैलेंडर और डेट पिकर। ओके, थैंक यू गाइस।